Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all. Welcome to our online lecture series on electronic devices and circuits. So last week we started the topic of small signal analysis. We discussed the very basics of small signal analysis. हमने देखा था कि small signal क्यों कहते हैं और किस तरीके से हमारे पास different small signal models आते हैं. For instance, pi model, T model, वो क्या होते हैं और किस तरीके से वो हमारे पास आ रहे होते हैं पीछे से. ठीक है, वो तमाम एनालिसिस हमने कर लिए. Today we are going to start the topic of single stage amplifier which was actually introduced in last lecture, but आज हम जो है जो common emitter amplifier configuration है उसको डिटेल में हम एनालाइज करेंगे using small signal analysis. So students, this is the circuit for common emitter amplifier. This was discussed last week as well. Here you can see some capacitors, CC1 and CC2. These are my coupling capacitors. Okay, so these are connected to couple the amplifier with input and output. Input side के ऊपर it ensures that there is no DC component from the signal source, so that the DC biasing of the transistor remains unaffected. ठीक है. This CE is my bypass capacitor. This what it does, it ensures that a signal ground appears at the emitter. ठीक है. So इसका नाम bypass capacitor क्यों है? क्योंकि this bypasses this resistance RE. This RE is my DC resistance, यानी कि ये DC circuit में मुझे नजर आ रही होगी. But for AC, all the capacitors will be short circuited, and what we will have it will be this ground which appearing at this terminal of the emitter. ठीक है. तो जब आप डीसी बायसिंग की बात करेंगे तो उस वक्त आपके पास क्या सर्किट होगा जी. हमने ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था. डीसी बायसिंग के लिए आपके पास सर्किट सिर्फ ये रहेगा. ठीक, क्योंकि आपके पास जो कैपेसिटर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ओपन सर्किट हो जाएंगे. सो दिस विल बी योर सर्किट एंड दिस विल बी वीसीसी हियर. दिस वांट टू बी जीरो. ठीक. नाउ जब हम एसी सर्किट की बात कर रहे होंगे तो उस वक्त हमें क्या करना है, ऑल द डीसी सर्किट्स विल बी ग्राउंडेड. ठीक है. सो डीसी सोर्स मेरे पास ग्राउंड हो जाएगी. This you can see this is ground here. These capacitors will be short circuited. Same will happen for this capacitor, and similarly this capacitor will also be short circuited, and here you will get a 0 volt. ठीक है. अच्छा, तो अब हमें क्या करना है कि हमने इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाना है. So let's draw the small signal model of this circuit in our next slide. Okay, students. So now it's our choice. We can draw the pi model or we can draw the T model. It's not a hard and fast rule. It's totally up to you. But based on our experience, what happens is for this configuration, common emitter configuration, we are more comfortable with small signal pi model. Okay. So what we are going to do is we shall be drawing the pi model. So जब हमने pi model बनाए तो हमने करना क्या है? The only thing which we have to do is that we will replace this three terminal device by its small signal model. ठीक है. And at the same time what we have to do is we have to ground DC sources. ठीक है. तो यहाँ जीरो हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास एक ग्राउंड अपेयर हो जाएगा. यहाँ पे ग्राउंड आ जाएगा. सो अब हमने क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं इसका स्मॉल सिग्नल और पाई मॉडल बनाने, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं. सो हियर यू गो. सो नाउ यू सी दिस इज योर पाई मॉडल. ठीक है. इसके अंदर जो आपको एरिया ब्लू से हाईलाइटेड है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर मॉडल. ठीक है. तो ये आपके पास मॉडल का हिस्सा है. Here we have considered the early effect. How do we know we have considered early effect? By this resistance R0. ठीक है. तो this is representing my early effect. बाकी अगर आप कनेक्शन देखें बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले थे. ठीक है. सो इफ यू पे अटेंशन, दिस इज आर सिग्नल कनेक्टेड विद सिग्नल सोर्स. ठीक है. द टू रेजिस्टेंसेस RB1 and RB2 which were for voltage divided biasing, they will now be appearing in parallel. क्यों? क्योंकि आपके पास ये ग्राउंड हो चुका है and ground are same. So what happens, this can be drawn like this. ठीक है. So essentially these two resistance will be in parallel. What is this resistance? This is my R pi, the model resistance in my small signal pi model. This voltage is V pi. आप चाहे इसे V pi कह लें या आप इसे चाहें VBE कह लें, from base to emitter. Now this emitter has been grounded. Is it from the model, small signal model? No, this is not from the model. This is, why is this grounded? Because we had a capacitor.
कैपेसिटर गॉट शॉर्ट सर्किटेड ड्यूरिंग एसी ऑपरेशन, तो हमारे पास यहाँ एमिटर के ऊपर एक ग्राउंड अपेयर हो गया. दिस इज व्हाई वी हैव अ ग्राउंड हियर. ठीक है. The other parts are the same. You see, RC is connected with collector and the other end is now grounded. So RC with collector and the other is grounded. Similar is the case for RL, the load resistance. Now this we have our small signal model. What we have to do is now we have to analyze and the small signal, we have to do the small signal analysis and find out some important characteristics. Basically, we are interested in three parameters. We are interested in finding out the input resistance of my amplifier, the voltage gain of my amplifier, and the output resistance. So for an ideal amplifier, we would like to have the input resistance as high as possible, the voltage gain be as high as possible, and the output resistance be as low as possible. Now, for this analysis, what we have to do is we have to just use the basic skills of circuit theory. There is nothing new. ठीक है, तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, हम इनपुट रेजिस्टेंस निकालनी है. Now important point is this, जब आप इनपुट रेजिस्टेंस निकाल रहे होंगे तो इनपुट रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस that you are looking into the input of your amplifier. ठीक है. So आपके पास जो R signal है, for instance, this cannot be part of your input resistance. So अगर हम सिर्फ एम्पलीफायर की बात करें, जस्ट अबाउट एम्पलीफायर, तो दिस इज माई एम्पलीफायर. ठीक है. अगर मैं इसको आपको दिखा सकूं, ये मेरे पास एम्पलीफायर का हिस्सा है. ठीक है. दिस विल रिमेन फिक्स्ड. Now this RL is my load, ठीक है, and this R signal is the internal resistance of this source. This is not a separate resistance which we have connected. जो आप वोल्टेज सोर्स होती है जिसको आप यूज कर रहे हैं फॉर एसी सिग्नल, दैट हैज सम इंटरनल रेजिस्टेंस. अगर आप फंक्शन जनरेटर की बात करें तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है. ठीक है. आर सिग्नल, आइडियली वी वुड लाइक टू हैव दिस रेजिस्टेंस एज लो एज पॉसिबल. चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स फाइंड आउट द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ दिस एम्पलीफायर. उसके लिए हमें क्या करना है, इनपुट कहाँ पर है, वेयर इज माई इनपुट. आई हैव अप्लाइड माई इनपुट एट बेस and I am taking my output from the collector. So what we have to do, we have to check the input resistance looking into the base. So अगर आप देखें तो आपके पास input resistance क्या नजर आएगी. ठीक है. बेस साइड से अगर आप देखें, so this will be your input resistance looking from this side. अब यहाँ पे देखें, आप कितनी इंतहाई आसानी से आप ये बता सकते हैं. You see, this is my one resistance RB1, this is my other resistance RB2, and the other resistance is this R pi. ठीक है. If you see, R pi is in parallel with the two resistance. Why is this in parallel? You see, one end is connected with base and the other is connected with ground. So essentially these three resistance are connected in parallel with each other. Therefore, this input resistance can be written as RB1 parallel with RB2 parallel with RIB. This is a term which we use and we define it as the input resistance looking into the base. यानी अगर मैं base side से देखूं, if I look from this side, ठीक है, let me draw it with another color. So if I look from this side, ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूं अपनी इनपुट रेजिस्टेंस, दिस इज माई RIB. ठीक है. इसको हम RIB कह रहे हैं. यहाँ पे तो बहुत आसानी से, बहुत सिंपल केस है. अगले केस में जब हम देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तो वहां पे इस RIB की सिग्निफिकेंस थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी. एनीवेज, so RIB is the input resistance into the looking into the base and this is nothing but your R pi. ठीक है. हमें R pi नजर आ रही है यहाँ से. So the total resistance will be the parallel combination of this. ठीक है. If the equivalent resistance of these two resistance, the parallel equivalent is RB, then the input resistance will be RB parallel with R pi. तो आपकी मर्जी है, आपसे जिस तरीके से लिखना चाहिए, simply RB1 parallel with RB2 parallel with R pi. ठीक है जी. R input is the input resistance of my amplifier. So this is it. My input resistance has been found. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि जनरली जो वैल्यूज होती है मेरे पास इस वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस की, RB1 एंड RB2 की, ये रेजिस्टेंस इनकी जो वैल्यूज होती है ये काफी ज्यादा होती है आमतौर पे. ठीक है. सो RB1 पैरेलल विद RB2 इज ग्रेटर देन R pi. ठीक है. एंड वी नो कि अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंसेज हैं पैरेलल में, एक बहुत बड़ी वैल्यू है और एक बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो क्या होगा मेरे पास, resultant input, the equivalent resistance will be close to the, in fact it will be close or actually less than the lowest resistance. ठीक है. So अगर मैं कहूँ कि मेरे पास lowest resistance R pi है, तो my input resistance will be less than R pi. It will be close to R pi or with an approximation
If the value of RB1 RB2 is very high, then it will be very close to R pi. स्टूडेंट्स ये जस्ट अजम्पशन के लिए, ठीक है। हमने जो यूज करनी है वो सिंपली कौन सी यूज करनी है, इट इज दिस डेफिनेशन जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस, हमने यही रिलेशन यूज करना है, ठीक है। सो दिस इज RB1 पैरेलल विद RB2 पैरेलल विद RIB। नाउ इफ यू सी, तो हमने ये नीचे रिलेशन क्यों निकालना है, ये कुछ कुछ चीजों को समझने के लिए। देखिए इससे एक चीज हमें पता चल रही है, which this relation tells me that my input resistance will be close to R pi and the value of R pi is like in few kilo ohms, बहुत ही small value होती है, बहुत small तो नहीं मतलब moderate होती है। I'm sorry, let me correct my statement, it's not very small, it's a moderate, ठीक है। और कुछ cases में आपसे low भी कह सकते हैं but not very low, ठीक है। So this is in few kilo ohms, so therefore the input resistance of common emitter amplifier is a very moderate value। चलिए स्टूडेंट्स, now that we have found out the value of input resistance, let's find out the relationship between these two voltages, V in and V signal. V signal is the voltage of the signal source, and V in is the signal that is actually being obtained at the input of the amplifier. What is the input of amplifier? Base. तो इसकी base के ऊपर जो input आ रहा है, that is VI. So ideally we would like to have both exactly same. So VI should be ideally equal to V signal, but this does not happen because of this resistance R signal. और ये R signal हम खुद लगाते नहीं है, in fact it is the internal resistance of your signal source. So now this relationship is given by voltage divider. I have given you the hint. I would like you to stop this video and try to write down this relationship using voltage divider. ठीक है, चलिए, I hope you have figured it out. If not, let me help you. अब मुझे करना क्या है, देखिए वोल्टेज डिवाइडर कब लगता है, वोल्टेज डिवाइडर तब लगता है स्टूडेंट्स जब मेरे पास दो रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज में हो। तो एक रेजिस्टेंस तो मैंने आपको यहाँ दिखा दी, दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री रेजिस्टेंस विच इज माय इनपुट रेजिस्टेंस, जो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। दूसरी रेजिस्टेंस है मेरे पास दिस आर सिग्नल, ठीक है। अब देखिए ये दोनों बिल्कुल सीरीज में, सो इफ दे आर इन सीरीज आई कैन फाइंड आउट द voltage across this input resistance, ठीक है। and this input voltage across this input resistance is VI, therefore VI will be given by this voltage divider relationship, ठीक है। ये जो ऊपर पूरी टर्म आपको नजर आ रही है, this is nothing but your input resistance, ठीक है। किस टर्म की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, it is this term जो आपको यहाँ नजर आ रही है। तो आप इस पूरी टर्म की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों, आप इसकी जगह R in लिख सकते हो। So if you write down R in place of this, you will have this relationship of R in upon R in plus R signal. Now, can you find out, can you figure it out why it is important to have input resistance as high as possible? ठीक है, मैंने पीछे बताया था कि एक आइडियल एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर की इनपुट रेजिस्टेंस शुड बी as high as possible. Because if the input resistance is very large as compared to R signal, then this R signal can be neglected. ठीक है, it can be neglected if the value of input resistance is very large. If it is very large, then this term will be close to 1. ठीक है, जो मैंने क्रॉस लगा दी है, this is very small, so this term will be close to 1. ठीक है, it will be approximately equal to 1. In that case my Vi input will be very close to V signal, ठीक है। इसके बरक्स if you put R in, जो मैंने येलो से किए, R in equal to R signal, you will see that V input will be 0.5 times into V signal, so 50% ड्रॉप हो गया है मेरे पास। so अब आप जितना अच्छा वोल्टेज गेन क्यों ना ड्राइव कर लीजिए, लेकिन इफ योर इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी लो, तो आपकी मेहनत ऑलरेडी शुरू ही में ज़ाया हो चुकी है, ठीक है। therefore we need to make sure that input resistance be as high as possible. Okay, now this combination of RB1 parallel RB2 is pretty close to sorry, it can be given as RB, ठीक है। and we know that this RB is very large than R pi, ये सेम वही बात है जो हमने पीछे कही है। तो this whole term can be represented by R pi, so then VI will be written as R pi upon R pi plus R signal into V signal. Anyways, we are going to use the main relationship which we found out here, ठीक है। बाकी सिर्फ assumption के लिए, आगे कुछ एनालिसिस सिंप्लीफाई करने के लिए हम चाहे तो यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन this Vi and V pi? Can you tell me what is the relationship between V in and V pi? I hope you know that. You can see that students from here. So this is exactly what I hope that you are also thinking the same. Is the same, ठीक है। V input is equal to V pi. Why?
क्योंकि ये पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। नाउ मुझे यहाँ पे वोल्टेज गेन ड्राइव करना है। वोल्टेज गेन इज माय आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। अब मेरे पास इनपुट दो हैं, वन इज माय वी आई एंड द अदर इज वी सिग्नल। अभी हम बात कर लेते हैं वी आई की, ठीक है। सो माय वन ऑफ माय सिग्नल इज हियर, दिस इज माय आउटपुट वी नॉट and the other input vi is here. So I have to find out the relationship between this v naught and this v in, if I can find out, ठीक है। सो हैव अ लुक एट वी नॉट। वी नॉट में क्या है, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, ठीक है। इनफैक्ट ये तीनों, लेट्स ऐड दिस वन। सो दीज थ्री रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल विद ईच अदर, ठीक है। एंड दिस इज अ करंट सोर्स। if I have to find out the value of voltage across this resistor, it will be nothing but current into resistance, ठीक है। by KCL, by KCL, ठीक है, यहाँ पे क्या करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज GMV पाई, ठीक है। और सेम वही करंट है जो इन तीनों रेजिस्टेंस में मिलाकर जा रहा होगा, क्योंकि इस वक्त लोड हमने कनेक्ट नहीं किया हुआ, मतलब एक्सटर्नल कोई और नहीं कनेक्ट किया, लोड हमारे पास कनेक्टेड है RL। सो अब देखिए मुझे V नॉट की इक्वेशन लिखनी है। सो V नॉट इज गिवन बाय V is given by I into R. So R is the sum, the parallel equivalent of these resistances, ठीक है। So this will be R naught parallel with RC parallel with RL. What about current? Current क्या लिखें स्टूडेंट्स हम, हमें करंट गिवन है, इट इज GMV पार, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू राइट इज द पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड विद द करंट, बट देयर इज वन ट्विस्ट। सी प्लस माइनस यहाँ पे आ रहा है, प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पर है, और करंट यहाँ पे एंटर नहीं हो रहा बल्कि अपोजिट जा रहा है, ठीक है। तो बाय केसीएल अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो करंट आपको मिलेगा, दैट करंट विल बी माइनस GMV पाई, जो इनके पैरेलल इक्विवेलेंट में जा रहा है। सो दैट विल बी माइनस GMV पाई। सो अब जब मैं आउटपुट इक्वेशन लिखूंगा, माय आउटपुट वोल्टेज विल बी माइनस GMV पाई, दिस इज माय करंट, ठीक है। ये करंट की इक्वेशन है, दिस इज करंट एंड दिस इज माय रेजिस्टेंस, ठीक है। सो नाउ आई हैव दिस रिलेशनशिप। सो माइनस GM एंड वी नो दैट V पाई इज इक्वल टू VI, ठीक है। And now we know we have to find out the relationship between V naught and VI. तो अगर आप VI को इस तरफ ले आए तो V naught upon VI is given by a term which is AV. So AV is called the voltage gain, ठीक है। It is the voltage gain from आउटपुट टू इनपुट, ठीक है। आउटपुट से इनपुट के दरमियान है हमारे पास। इनपुट कौन सा, जो मेरे पास बेस के ऊपर आ रहा है। AV is defined as V naught upon VI. So it is given by minus GM R naught parallel with RC parallel with RL. I hope this is clear to you students. Now if there is another term which is called the open circuit voltage gain, वो क्या होता है, AV naught। अगर आप RL को जीरो कर दीजिए, ओपन सर्किट का मतलब क्या है, सॉरी RL को जीरो मत कीजिए, RL को रिमूव कर दीजिए। ओपन सर्किट का मतलब ये है कि आपकी जो रेजिस्टेंस है ना, इसको आप रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने का मतलब ये है कि इसको ओपन कर दीजिए, और जब रेजिस्टेंस को आप सर्किट को ओपन करते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस है RL, इसकी वैल्यू को हम एक्चुअली इनफाइनाइट कर देते हैं। जब हम इनफाइनाइट कर देते हैं तो सिरे से यहाँ से खत्म हो जाती है, ठीक है। सिंपली RL is removed and this is what we get. So AV naught is minus GM R naught parallel with RC. So AV naught is nothing but the open circuit voltage gain. Let's continue our analysis for finding out the voltage gain. So generally this R naught is very large than RC. RC हमारे पास कम होती है, R naught की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, ठीक है। R naught is given by VA upon IC, where VA is the early voltage. तो मेरे पास AV naught का रिलेशन क्या बन जाएगा, ये सब सिंप्लीफिकेशन है। अगर आपको वैल्यूज गिवन है, यू हैव टू जस्ट पुट इन द वैल्यूज। सो इट विल बिकम देन AV naught विल बी माइनस GM RC। क्यों, क्योंकि आपके पास जो स्मॉलर रेजिस्टेंस है वही सिग्निफिकेंट हो जाती है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। नाउ this is the overall voltage gain which we wanted to find. What is this has been defined by GV. GV is a term, ठीक है। GV represents the overall voltage gain. In overall voltage we mean it's this V naught divided by V signal. So GV is V naught divided by V signal. ये रिलेशन मेरे पास कहाँ से आया स्टूडेंट्स, प्रीवियसली मैंने यहाँ पे V naught और VI के दरमियान रिलेशनशिप लिखा था, ठीक है। So V naught was minus GM V pi, और V pi is your V in. So if you replace V in terms of V signal, जो कि हम पीछे ड्राइव कर चुके हैं, तो this will be your result, ठीक है। हमने सिर्फ ये किया कि हमने इस कंपोनेंट को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जो हम पीछे ड्राइव कर चुके थे, ठीक है। This is in terms of VI. This is what we did कि हमने VI को in terms of V signal रखा। तो V signal कहाँ चला गया, there was V signal here जो हम यहाँ पे डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे। So now this is V naught divided by V signal.
So you see the overall voltage gain is this term multiplied with the previous term जो हम पीछे derive कर चुके हैं. This GV is your overall voltage gain. ठीक है, इसके ऊपर आप मजीद सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि if the value of RB is greater than R pi, तो फिर आपके पास ये रिलेशन कुछ यूं बन जाएगा. ठीक है, बट उसकी हमें ऐसे जरूरत नहीं है. The main important relationship is one which we have already figured out. ठीक है स्टूडेंट्स. ठीक है, लास्टली अगर आप आर सिग्नल को बहुत, इफ द आर वैल्यू ऑफ आर सिग्नल इज वेरी स्मॉल देन आर पाई, तो ये रिलेशनशिप बन जाएगा. बट अगेन एज आई सेड कि वी विल बी यूजिंग द मेन रिलेशनशिप व्हिच आई हैव चेक्ड हियर. ठीक है, now is the time to find out the output resistance. Output resistance is simply your output resistance. Output terminal पे आप देखें the resistance that you see from your output terminal. Output terminal मेरे पास कहाँ पर है स्टूडेंट्स? Output terminal is my collector. So आप collector से अगर आप देखें तो you will see these resistances RC, R0 and RL. But important to note here is while calculating the output resistance we do not consider RL. Why? Because RL is not part of my resistor. This is the load. तो लोड चेंज हो सकते हैं. ठीक है, देयरफॉर जब हम इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करेंगे दिस विल बी दिस ब्लॉक. सो यू सी माय आउटपुट रेजिस्टेंस इज एक्चुअली द पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ R0 एंड RC. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर R out. और ये विद सिंप्लीफिकेशन जनरली R0 की वैल्यू ज्यादा होती है, तो R out इज क्लोज टू RC. ठीक है, सो यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आउटपुट रेजिस्टेंस इज क्लोज टू RC. अब RC कैन नॉट बी वेरी स्मॉल बिकॉज इफ RC इज वेरी स्मॉल तो आपका गेन अफेक्ट हो जाता है. गेन की इक्वेशन में भी आपके पास -GM RC आ रहा था. ठीक है, सो आउटपुट रेजिस्टेंस जो होती है वो इसकी बहुत लो नहीं होती एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में. दिस इज द समरी स्टूडेंट्स. सो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज बेसिकली यूज्ड टू प्रोवाइड द वोल्टेज गेन. यानी बल्क ऑफ द गेन, मेजर जो चंक है गेन का, that is provided by common emitter amplifier. होता क्या है essentially you have amplifiers connected together with each other. ठीक है, सिंगल स्टेज नहीं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स होते हैं, तो उसमें कुछ कॉमन एमिटर होते हैं, कुछ डिफरेंट स्टेजेस होती हैं. लेकिन कॉमन एमिटर इज द स्टेज दैट इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द बल्क गेन. ठीक है, अगर एक से काम नहीं हो रहा तो आप दोनों को कैस्केड कर सकते हैं, आपस में लगा सकते हैं. इसका मतलब ये होगा कि गेन आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे. The other term is that the R input is low. ठीक है, इनपुट इज रिलेटिवली लो एंड आर आउटपुट इज रिलेटिवली हाई. ये तो हमारे पास एक पैरामीटर्स हैं जो हमें किसी हद तक थोड़ा सा तंग कर सकते हैं. ठीक है, ओके जी स्टूडेंट्स, नाउ इज द टाइम टू सॉल्व एन एग्जांपल जो मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ. ये हमारा एक सवाल गिवन है. ठीक है, आप देख सकते हैं एक सर्किट है जिसमें मेरे पास एक डीसी कंपोनेंट है. ठीक है, दिस इज माय डीसी कंपोनेंट और ये मेरे पास एसी है. And we know we have to find out the voltage V0 divided by Vi, and it's given that beta is equal to 100. Neglect the early effect. इसका मतलब ये कि हमने R0 को कंसिडर नहीं करना. तो अब हमें एनालिसिस करनी है, तो हमारे दो पार्ट हैं. हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डीसी एनालिसिस और उसके बाद हमने इसकी एसी एनालिसिस करनी है. तो जब हम डीसी एनालिसिस करेंगे तो डीसी सर्किट बनाएंगे. रिमेंबर ये सवाल मैं आपको पिछले लेक्चर में भी करा चुका हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद डीसी एनालिसिस. ये आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा फॉर डीसी. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सोर्स है आपके पास ये रिमूव हो चुकी है. एसी सोर्स हमने रिमूव कर दिए, शॉर्ट कर दिए, और उसके बाद बकिया सर्किट सेम वही है. अब अगर आप एसी इक्विवेलेंट सर्किट की बात करेंगे तो एसी इक्विवेलेंट सर्किट में हमने डीसी को रिमूव कर दिया. ठीक है, आप देख सकते हैं देयर इज नो डीसी. एंड सिमिलरली दिस इज इंपॉर्टेंट दैट दिस वोल्टेज सोर्स, दिस वीसीसी, इज नाउ ग्राउंडेड इन माय एसी इक्विवेलेंट सर्किट. लास्टली द स्मॉल सिग्नल मॉडल. स्मॉल सिग्नल मॉडल में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? हमने जो टर्मिनल है 3 टर्मिनल डिवाइस दिस बीजेटी, दिस इज रिप्लेस्ड बाय इट्स मॉडल. बाकी चीजें वैसे की वैसी कनेक्ट करनी है जैसे एसी इक्विवेलेंट सर्किट में. ठीक है, लेट्स डू दैट. सो हियर यू सी दिस इज द सेम सर्किट बिकॉज अर्ली इफेक्ट वाज नेग्लेक्टेड, देयरफॉर हमने यहाँ पे R0 को नहीं दिखाया. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेज गेन. डीसी एनालिसिस आई विल बी स्किपिंग बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू हाउ टू सॉल्व डीसी एनालिसिस. चलिए, अगर आप एक नजर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए. डीसी एनालिसिस इज वेरी सिंपल. We know the emitter voltage. From here we can find out the base voltage and then we will be able to find out base current. बहुत ही सिंपल सवाल है जो हम इस टाइप के सवाल बहुत कर चुके हैं. And then we can find out the collector voltage. ठीक है, using VC is equal to VCC minus IC RC. ठीक है, and this can be proved that this is in active mode
although it is not required because we know that it is already working as an amplifier. ओके जी, डीसी बायसिंग होने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाना है। मॉडल बनाने से पहले हमें उसके कुछ पैरामीटर्स जो होते हैं जो निकालने होते हैं। कौन सा मॉडल हम बनाएंगे? दिस वाज अ कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर में हमेशा हम पाई मॉडल बनाते हैं, ठीक है। कॉमन एमिटर का एक और वेरिएंट है जो हम अगली क्लास में देखेंगे, वहां हम पी मॉडल बनाते हैं। तो चलिए, स्मॉल सिग्नल मॉडल में कौन सी पैरामीटर्स होते हैं? वी नीड आर पाई, वी नीड जीएम, ठीक है। आर पाई निकालते हैं, जीएम निकालते हैं, और हो सकता है हमें आर ई की जरूरत पड़े तो हम वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट हमें जो मॉडल पैरामीटर्स है वो निकालने हैं। लेट्स डू दैट। इनफैक्ट आर ई की हमें यहाँ जरूरत नहीं है, हमें आर नॉट की जरूरत पड़ेगी। लेट्स फाइंड आउट। सो आर ई आप चाहें तो निकाल लीजिए, जरूरत नहीं है। आर ई इज गिवन बाई वी टी अपॉन आई, ठीक है। दिस इज योर आर ई। ये रिलेशनशिप आपको पता होने चाहिए, पीछे हमने ड्राइव किए। GM is IC upon VT, and this is your R pi. You just plug in the values and you will get your answers. Now that you have the parameters, you can draw your model. ठीक है जी। तो हम क्या करें जी, मॉडल बनाएं। तो लेट्स ड्रॉ इट। मॉडल बनाने से पहले हमने यहाँ पे AC इक्विवेलेंट सर्किट भी दिखा दिया आपको दोबारा। दिस इज योर इक्विवेलेंट सर्किट जो हम पीछे भी देख चुके हैं। अब इसका मॉडल बनाना है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास मॉडल आ चुका है, हमने पैरामीटर्स की वैल्यू लिख ली है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेन। लेट्स फाइंड आउट द वोल्टेज गेन इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास मॉडल ये। अब मुझे क्या करना है, मुझे पीछे में डिराइव कर चुका हूँ। व्हाट विल बी इस इनपुट रेजिस्टेंस। आप देखिए इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगी इस सर्किट की। अगर आप यहाँ से देखें, I hope you can figure out. The input resistance will be nothing but your R pi. What will be the value of output resistance? Output value will be nothing but your RC. Finally, we have to find out the relationship between V0 and VI. ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर आप इसे VI कहें या आप इसे कुछ और नाम दे दें, VI डैश कहें, क्योंकि यहाँ पे आपको VI दे दिया, हमने वहाँ V सिग्नल कहा था, इट डजंट मैटर, ठीक है। सो दैट रिलेशनशिप वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड और वो हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज VB, हमने यहाँ पे से VB नाम दिया है। दिस VB इज गिवन बाय वोल्टेज डिवाइडर। देख सकते हैं दिस इज योर इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस प्लस R सिग्नल। R सिग्नल की जगह पे यहाँ पे RBB लिखा हुआ है, सो इट डजंट मैटर। सो वी फाउंड आउट दिस रिलेशनशिप, ठीक है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन VBE एंड योर Vin। अब क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन V0 एंड VI। उसके लिए हम पीछे ड्राइव कर चुके हैं। आउटपुट वोल्टेज इज गिवन बाय दिस रिलेशनशिप माइनस GM VBE इंटू RC, ठीक है। और सीधा सीधा VBE की जगह आपने वैल्यू पुट की एंड यू फाउंड आउट दैट V0 इज इक्वल टू माइनस 3.04 इंटू VI। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल सी दैट द वोल्टेज गेन इज माइनस 3.04 वोल्ट। यहाँ पे हमने डायरेक्ट मॉडल को देखकर हमने इक्वेशन लिखी है। आप चाहें तो जो हमने पीछे ड्राइव किया उन्हीं को भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। सो इट इज टोटली अप टू यू। प्लीज गिव इट अ ट्राई एंड यू विल सी कि दिस इज एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। सो नाउ वी हैव फाउंड आउट द वोल्टेज गेन एज वेल। चलिए स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने इसको सॉल्व नहीं करना, हमने सिर्फ इसके इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो यहाँ पे इसका अगर डीसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है आपको, तो आप क्या करेंगे, कैपेसिटर्स को ओपन सर्किट कर देंगे आप, ठीक है। और आपके पास सर्किट कुछ यूं बन जाएगा, देखिएगा और कीजिएगा। दिस विल बी योर डीसी इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। और एसी इक्विवेलेंट भी वैसे ही बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने पाई इस यहाँ पे मॉडल बनाना है स्मॉल सिग्नल। स्मॉल सिग्नल में आप चाहे पाई मॉडल बनाए चाहे टी मॉडल बनाए, सो इट इज अप टू यू। अगर आपको सिर्फ कहा गया कि मॉडल बनाए और एनालिसिस नहीं करनी है तो आप जो मॉडल चाहें बना सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे टी मॉडल बनाया। लेट्स हैव अ लुक। सो दिस इज इट, डीसी इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। उसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, पैरामीटर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एसी इक्विवेलेंट में क्या होगा, मेरे पास कैपेसिटर्स विल बी शॉर्ट सर्किटेड एंड वोल्टेज डीसी वोल्टेज सोर्सेज विल बी ग्राउंडेड। आपको नजर आ रहा होगा वोल्टेज सोर्स को हमने ग्राउंड कर दिया, डीसी ये ऑलरेडी ग्राउंड था, ये माइनस भी हमने ग्राउंड कर दिया, ठीक है। फाइनली मुझे मॉडल बनाना है। तो मॉडल बनाते वक्त मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, आई हैव टू रिप्लेस, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, दिस थ्री टर्मिनल बीजेटी बाय इट्स मॉडल। हमने यहाँ पे टी मॉडल से इसको रिप्लेस किया, ठीक है। So this is the T model जो आपको दिखाया हुआ है, R नॉट के इफेक्ट को नहीं दिखाया। So this is how we draw the DC equivalent, how we draw the AC equivalent, and how we draw the small signal equivalent model. चलिए स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे तो मैंने होम टास्क आपको देना था, आज का लेक्चर थोड़ा सा 5 मिनट लेंदी हो जाएगा, बट आपके एडवांटेज के लिए मैं आपको एग्जांपल करा रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज माय सर्किट, अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जिसके पैरामीटर्स मुझे गिवन है। वैल्यू ऑफ RC इज 5 किलो ओम,
we have to find out the input resistance R0 and AV0. AV0 is my voltage gain, ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। तो देखिए बहुत आसान है, मॉडल बनाएंगे हम सबसे पहले इसमें, ठीक है, और आप चाहे मॉडल के बगैर भी यहाँ बता सकते हैं। हमने यहाँ पे बनाना है एक पाई मॉडल इसका, ठीक है। पाई मॉडल से पहले हमने पैरामीटर्स निकाल लिए, हमने जीएम निकाल लिया, हमने आर पाई निकाल लिया, which were given to us। उसके बाद दिस आर इन इज वेरी इजी। आप मैंने यहाँ मॉडल नहीं बनाया क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं, यहाँ पे मॉडल की एक रेजिस्टेंस आ रही होगी विच इज आर पाई, आप चाहें तो मॉडल बना सकते हैं। सो आर इट विल बी आर पाई एंड योर एवी नॉट विल बी, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, माइनस जी एम आर सी। वहां पे क्या होता था, आर सी पैरेलल विद आर नॉट, इफ यू रिमेंबर, पैरेलल विद आर एल। यहाँ पे आर एल है ही नहीं सिरे से एंड आर नॉट हैज बीन neglected, early effect has been ignored, so AV naught will be nothing but by minus GMRC, and your output resistance is also very simple, it is nothing but your RC, ठीक है। this is very consistent with what we have derived previously, ठीक है students। अच्छा, we are done with this part। अब क्या हो रहा है, अब कहा गया कि if the amplifier is fed with a signal source having a resistance of 5 kilo ohm, ये कौन सी resistance है students, ये हम इस resistance की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस रेजिस्टेंस इज 5 किलो ओम से कह रहे हैं, और हमने यहाँ पे एक लोड कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोड कनेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, आर एल, दैट आर एल इज 5 किलो ओम्स। वी हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेज एवी एंड जीवी। रिमेंबर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवी एंड जीवी, एवी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस वी आई, whereas GV is the overall voltage gain, so it is V naught divided by V signal, ठीक है। उसके बाद जब हम ये निकाल लेंगे तो उसके बाद हमें ये मालूम करना है कि if V pi is limited to 5 millivolt, what are the corresponding V signal and V naught with load connected? Let's do that। सबसे पहले हम AV और GV निकालते हैं। बहुत ही आसान है हमारे पास स्टूडेंट, हम रिलेशन पहले निकाल चुके हैं। AV is given by minus GM RC parallel with RL। आप चाहें तो ऊपर वाला रिलेशन भी यूज कर सकते हैं, we haven't used this, I prefer that we use this one, जो क्योंकि हम ये पहले ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है। तो AV is minus GM RC parallel with RL। Okay, then what's next? After AV we have to find out the value of GV, और GV का भी रिलेशन हम आसानी से हमें मालूम है, हमें याद है, हम पीछे निकाला था। It is given by this relationship, so Rin upon Rin plus R signal into AV। आप सोच रहे होंगे हम तो माइनस होते थे GV में, तो वो माइनस इट इज इन दिस AV, ठीक है। AV की वैल्यू पुट कीजिए एंड यू विल गेट दिस इक्वेशन, माइनस GM RC पैरेलल विद RL, R नॉट हैज नॉट बीन कंसिडर्ड, ठीक है, तो इट इज इग्नोर्ड हियर। आप चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं बट हमने यहाँ पे इग्नोर किया हुआ। ओके, वंस यू पुट इन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ GV। लास्टली जो आपके पास पार्ट है, आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड गिवन है वी पाई का। व्हाट इज वी पाई, जो आपके पास बेस एमिटर वोल्टेज के दरमियान, दिस इज 5 मिली वोल्ट। और नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी सिग्नल एंड आल्सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर वी नॉट, ठीक है। तो रिलेशन हमें मालूम है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वी पाई एंड वी सिग्नल, जो हम पीछे ड्राइव कर चुके हैं। हमने अपोजिट ड्राइव किया था, यहाँ पे हमें ये रिलेशनशिप चाहिए। जस्ट प्लग इन द वैल्यूज एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर वी सिग्नल एंड आल्सो द वैल्यू ऑफ योर आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो आपका होम टास्क है, प्लीज गिव इट अ ट्राई, वो उससे आपको हेल्प होगी। दीज आर सम एग्जांपल्स फ्रॉम 7th एडिशन, प्लीज गिव इट अ ट्राई, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये दोनों, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ये सेम वही सवाल है, डेटा आपको गिवन है, गिव इट अ ट्राई, इफ यू कैन डू दैट इंशाल्लाह देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी कॉमन एमिटर एम्पलीफायर क्वेश्चन इंशाल्लाह। सो लास्टली दिस इज येट अनदर एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल्स की कोई कमी नहीं है, आप जितनी एग्जांपल चाहें आपको एग्जांपल मिलेगी, ठीक है। इसको ट्राई कीजिएगा, लाजमी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इनमें से कुछ सवाल हो सकते हैं मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे भी दे रहा हूँ, बट डोंट वेट, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। In case you still have queries, you can ask me during the interactive session, or you can email me as well. So till our next lecture, it's Muhammad Uwais signing off. Allah Hafiz.